السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں، پتہ نہیں ان دیوبندیوں کو کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو کال نہیں کرتا، مجھے یہ سامنے سے کال کرتے ہیں اور پورا پورا دن مجھے کال کرتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے کال کر کے پریشان کرتے ہیں اور میں ان کے ہر کال کو اٹھاتا بھی ہوں، پھر بھی یہ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ تو دیوبندیوں کو کال کر کے پریشان کرتا ہے، تو دیوبندیوں کو کال کر کے پریشان کرتا ہے۔ پتہ نہیں سالے کون سی بیماری جو ہے ان کے دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ ایک تو مجھے ہی پریشان کرتے ہیں کال کر کر کے اور مجھے ہی الٹا بدنام کرتے ہیں یہ سالے شیطان حرام خور۔ اگر مجھے غصہ نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ ان حرام کے پلوں کو میں جتنا منع کرتا ہوں کہ جاؤ مت بات کرو، جاؤ مت بات کرو، اتنا ہی یہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم بات کریں گے تجھ سے۔ آج تک تو نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے جو بیچارے کچھ جانتے نہیں ہیں، اور جب بات کرتا ہوں تو کتے کی طرح بھاگ جاتے ہیں دم دکھا کے۔ پتہ نہیں سالے شیطانوں کی کیسی عادت ہے۔ بہرحال خیر مسلمانوں، جس الزام سے میں بچنا چاہتا ہوں وہی الزام سالے میرے پاس سامنے لا کے رکھتے ہیں، حالانکہ خود ہر آڈیو میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور بدنام مجھے کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کرتا ہے، ایسے تجھے کیا ملتا ہے؟ ارے مجھے سکون ملتا ہے، میں جب عوام اہل سنت کے سامنے وہابی، دیوبندی اور اہل سنت کی باتیں رکھتا ہوں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جس کو جو اچھا لگے گا اس کو قبول کر لیں گے۔ جو رسول اللہ کے دشمنوں میں رہنا چاہتا ہے رہے، ہمیں کیا غرض ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، جاؤ۔ میں تو ان بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کام کرتا ہوں جو دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، دیو کے بندروں کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ خیر مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دیکھو بات کرنے کے لیے کس طرح کی ضد کرتے ہیں، بار بار کال کرتے ہیں، بار بار کال کر کے پریشان کرتے ہیں اور پھر کال کٹ کے خود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ خیر سنیں آپ پوری آڈیو اور فیصلہ کریں مسلمانوں۔ ہیلو، کیا نام ہے؟ نور حسن بول رہے ہیں آپ؟ ہاں آپ کون؟ یہ میں آپ سے بات تو مفت میں، لیکن میں چاہ رہا ہوں اب فرصت میں کب رہتے ہیں تو اسی ٹائم بات کروں گا، میں نے ابھی اس لیے آپ کو فون کیا ہے۔ مجھے تو فرصت کسی بھی ٹائم نہیں رہتی ہے۔ تو جیسے آپ کو ہم جیسے بات کریں تو ہو سکتا ہے کافی ٹائم آپ ہو جائے، گھنٹہ اگر بات ہو جائے، تو اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ ویسے مطلب آپ کون ہیں، کیوں بات کرنا چاہتے ہیں، وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ لے کر کے بہت آپ کو دیکھ رہا ہوں، مطلب لوگوں کی بہت ویڈیو میں یوٹیوب میں جو ہے باتیں ہیں آپ کی علماء دیوبند کو لے کر کے۔ کیا چیز؟ علماء دیوبند کو لے کر کے میں نے دیکھا کئی جگہ آپ کی ویڈیو دیکھی اچھا، یوٹیوب میں، فون پر جو آپ نے گفتگو کری ہے لوگوں سے، تو سب جگہ آپ نے علماء دیوبند کو کہا ہے کہ وہ تو بالکل مسلمان نہیں ہے، سب کو اپنے، یہاں تک کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے۔ آپ کو اپنے مسئلے پر پورا مطالعہ کیا ہوا ہے؟ آپ کون ہیں پہلے بتائیں نا، کم سے کم آپ کون ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہیں؟ میں مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، میرا محمد علی نام ہے، تو میں مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، مفتی ہیں مولوی ہیں؟ مولوی نہیں ہوں، مولوی بھی نہیں۔ تو آپ نے اپنے مسلک کا جو ہے مطالعہ کیا ہے، آپ نے اپنے مسلک کی کتابوں کا، اپنے اکابرین کی کتابوں کا؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے اس لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے آپ نے؟ اب نام بتائیں، میں بتاؤں گا، میں نے سب کا کیا جواب۔ اچھا، صراط مستقیم کا مطالعہ کیا ہے؟ میں بالکل کیا ہے۔ اچھا، تہذیب الناس کا مطالعہ کیا ہے؟ سب کا کیا ہے، سب کا۔ حفظ الایمان کا مطالعہ کیا ہے؟ بالکل سب کا کیا ہے۔ اچھا، تذکرۃ الخلیل کا مطالعہ کیا ہے؟ سب کا، جتنا میں نے آپ کو سن لیا ہے، میں جتنا آپ نے۔ ایک منٹ۔ اچھا، فتاوی رشیدیہ کا مطالعہ کیا ہے؟ سب کا ٹوٹل کا کیا ہے۔ اچھا، ٹوٹل کا کیا ہے؟ ہاں۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگا اس کو؟
नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनो मेरी सुन लीजिए। आपने अपने मसलक का सब आपने मुताला किया हुआ है आपने भी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जितना मेरे को इल्म है, जितना मेरे को मालूम है, आपको जो एतराज हो, जो डाउट हो, वो आप रखें, है ना? ठीक है, मैं जो डाउट है आप करें, हमें जो डाउट है हम करेंगे। एक सवाल आपका होगा, एक सवाल हमारा होगा। आप क्या है, आलिम है क्या है? नहीं, मैं एक सादा आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ। आप क्या हैं? हाफिज वगैरह? हाफिज वगैरह? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो बेटा सन्नाटा हूँ, मैं पब्लिक का आदमी हूँ। नहीं है, कुछ तो है, ऐसे तो नहीं है आपको। अरे भाई, जीरो बेटा सन्नाटा हूँ, मैं जीरो आदमी हूँ। मेरी तालीम नहीं है कोई, मैं तालीम में जीरो हूँ। फिर आपने उर्दू मतलब किताबों को मुताला कैसे करते हैं, फिर कैसे समझते हैं आप उर्दू? अरे तो नहीं है, तो इतनी तालीम को कोई तालीम थोड़ी कहते हैं। तो पूछ रहा हूँ ना कि भाई मतलब तो आपको आती है तभी तो आपने मुताला किया है। हाँ, थोड़ा बहुत मुताला किया है। अच्छा, तो आपका मशगला वैसे क्या है? मशगला आपका क्या करते हैं आप, काम वगैरह? पहले मेरा मशगला था गाड़ी चलाना, ड्राइविंग। अच्छा। और अब फिलहाल गाड़ी उड़ी का काम तो उतना नहीं है, लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर डाला है। अच्छा। तो सैयद आले रसूल ने एक छोटा सा रोजगार दिया है, जो बालों में डालने वाला ऑयल आता है, बालों को झड़ने टूटने से रोकता है। ऑयल तेल। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब क्या दुकान आपने खोली है? हाँ, उसी को जो है प्रचार करता हूँ, उसी को जो है मतलब सप्लाई करता हूँ। रहने वाले कहाँ के आप? मैं रहने वाला यूपी का हूँ। आप कौन सी जगह से हैं? मैं झारखंड लातेहार से। अच्छा, झारखंड लातेहार। अच्छा अच्छा, मैं रामपुर से हूँ। अच्छा, रामपुर से आप हैं? रामपुर की जगह से? काशीपुर। काशीपुर, ये रामपुर जिले में काशीपुर आता है? हाँ। काशीपुर उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड में? नहीं, वो दूसरा है। अच्छा, ठीक। तो आप मतलब फुर्सत में रात में रहते होंगे, दिन में तो मुश्किल रहता होगा काम का आपका? मैं रात में बात नहीं करता हूँ, जो भी बात करनी है अभी कीजिए। अच्छा, नहीं अभी और वैसे तो ना करोगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि खामोश रहने में, चुप रहने में, बात ना करने में आपकी इज्जत बनी रहेगी। और अगर आपने मुझसे बात की तो आप ही अपनी जमात का बेड़ा गर्क कर डालेंगे। वही मतलब हमें मतलब क्या नाम है, हमें इतना भी अपने पर शर सदर नहीं कि अपने मतलब में जो मतलब आप जो कहें वो सच निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो। तो क्या आप अपने अकाबिरीन को रसूल पाक से ज्यादा मानते हैं? हम सबसे पहले अल्लाह रसूल को मानते हैं, उसके बाद में सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना? हाँ, तो इंशाअल्लाह मेरा वादा है आपसे कि आप अपने अकाबिरीन को या तो काफिर साबित करेंगे। अच्छा सुनिए, एक बार और सुन लीजिए थोड़ा सा कि मतलब आप ये जो काम कर रहे हैं तो आप इखलास लिलाहियत के लिए कर रहे हैं या नाम नमूद के लिए करते हैं, ये बताइए। मैं लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए ये काम करता हूँ। मैं तो उसे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको कई गुफ्तगू मैंने सुनी है तो आप उसमें तो गाली गलौज में रहते हैं आप सामने। मैं सादा आदमी हूँ, आवाम का आदमी हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ। तो भाई जब सामने वाला कुछ गलत करता है तो मैं भी गलत कर दूं, तो इसमें कौन सी गलत बात है भाई? एक आम आदमी भी है लेकिन सलीकेमंद आदमी। आप अगर देखिए, सुनिए, पहली बात सुनिए, मेरा क्या है, जिस तरह सामने वाला बात करता है मैं उसी तरह की बात करता हूँ। आपने कभी ऐसा देखा कि सामने वाला जो है महज़ब अंदाज में, बड़े प्यार से, बड़े मीठे अंदाज में बात कर रहा है और मैंने उसको बेवजह गाली बकी हूँ? उसने अगर कहीं ना कहीं हठधर्मी की है, अगर उसने कहीं हठधर्मी की है, कहीं अल्लाह और उसके रसूल की शान में तौहीन की है, कहीं अल्लाह और उसके रसूल के कमाल को तस्लीम नहीं कर रहा है, वहां अगर मैंने तेज अल्फाज बोला हो, वो एक अलग बात है भाईजान, समझे? मैंने ज्यादा गुफ्तगू मैंने आपकी सुनी है, लेकिन मैंने फिर भी सुनी है, 3-4 तो सुनी ली आपकी। उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? पहले आप सुन लीजिए, फिर फैसला कर लीजिए जो भी है कि आपको किधर जाना है, कहाँ नहीं जाना है। चलो, मैं तो ऐसा करो, मैं अगर आपको रात में नहीं, कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की। आप इसके बाद कॉल भी मत करना आप मुझे। क्यों भाई? आप तो भी दूसरों को फोन करके पता वो नहीं, मैं नहीं करता हूँ। जिस तरह आपने कॉल किया उसी तरह मुझे कॉल आते हैं।
मैं नहीं करता, फिर आप और मैं करता हूँ तो दुनियाई देवंदियत के बड़े से बड़े ऊंची चीजें उस चोटी वाले को करता हूँ मैं। तो आप तो सुनो, तो फिर आपका यूट्यूब में तो आ रहा है, सब जगह आ रहा है, कई जगह आ रहा है आपका, तो क्या आ रहा है? जैसे आपका नाम है और क्या नाम है इसका, आपका पूरा चैनल है बकायदा, फिर आपकी बातें भी भाई कई सारे लोगों से है, आपने गुफ्तगू करी बहुत सारे लोगों से। हाँ तो मैं नहीं करता हूँ ना, सामने से लोग मुझे करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। और मैं करता हूँ तो फिर मैं देवबंद के ऊंचे से ऊंचे मौलवी को करता हूँ, मैं छोटे मोटे को फिर नहीं करता हूँ। दारुल उलूम देवबंद डायरेक्ट कॉल लगाता हूँ, या फिर कोई और बड़े से बड़ा कोई आलिम होता है मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं छोटे मोटे को फिर कॉल नहीं करता हूँ। और कॉल भी उस वक्त करता हूँ जब कोई देवबंदी बेवजह की हठधर्मी करता है, ठीक है, तो मैं उसके घर वाले से, उसके आलिम से जवाब लेता हूँ। ये बात ध्यान रखिए, कोई भी देवबंदी कभी किसी के खिलाफ एकदम से नहीं बोलता है, लेकिन आप लोगों के यहाँ हर मसलक मस्जिदों में या जलसे जुलूस में ज्यादातर आपके यहाँ बयान होते हैं इस तरह के। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 गिरोह होंगे, 73 तबके होंगे, उनमें एक हक पर होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। वो तो ठीक है, तो जहन्नमियों को बुरा कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? वो नहीं, वो सब ठीक है, वो आप जो बातें कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन बहरहाल आप बात ना करें तो बेहतर होगा, कॉल कट कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। भाई हमें अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने ऊपर नहीं, मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको, मैं मशवरा दे रहा हूँ और बेहतर मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा जी। तो फिर आप लोगों को ये जो सुनाते हैं, तो मतलब आपसे हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं ना कि आप लोगों को बता रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है जी मौलवी साहब, आपके बस की बात नहीं है कि आप बात कर सकें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भलाई है आपकी इसमें कि बात ना करें। मेरी भलाई है, मेरी बुराई है, वो तो मैं समझता हूँ क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, चलिए छोड़िए, ये बताइए कि आप सुनिए एक मिनट सुनिए, अभी मैं आपसे तो नहीं करूँगा गुफ्तगू, टाइम हो रहा। तो फिर आपने किया क्यों है इस वक्त? मैंने आपसे इसलिए फोन किया था कि मैं आपसे टाइम लूंगा कि आप फुर्सत में कब रहते हैं। मुझे कभी फुर्सत नहीं रहती है यार। अच्छा भाई, हाँ तो देखो एक और कॉल आ रहा है, रिसीव करूं? इनको भी रिसीव कर लेता हूँ, कौन है लाइन पे, रहना ठीक है। हेलो, फहीम बोल रहा हूँ हजरत। हैं? फहीम बोल रहा हूँ, फहीम रजा। फहीम रजा भाई? हाँ, एक बार दो बार बात हुई है बदायूं से। अच्छा बदायूं से, अच्छा। वालेकुम अस्सलाम हसरत जी, फरमाइए। तो मैं लगाता हूँ वो 97 19 19 53 33 है, उसमें वैलिडिटी खत्म हो गई है, इसलिए लगाया इससे। अच्छा हजरत जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हजरत, मैं काफी वीडियो देख रहा हूँ कि वो महबूब मदनी की अजमेर शरीफ गया है, और वो भी वहाँ वाले भी इसके स्टेज पे बैठे हुए हैं। हाँ, इनका करना कुछ है, इनका करना कुछ होता है और कहना कुछ होता है, समझे हजरत। इनका मामला वही है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाँ, मैंने अपलोड अपने मोबाइल में भी कई वीडियो उनकी वो कर ली है। एक जिम्मेदार देवबंदी और है मेरे साथ लाइन पर। अच्छा। हाँ, वो बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम बताया था मुझे, कोई नाम भूल गया मैं। और झारखंड के रहने वाले हैं ये, लातेहार के। अच्छा। हाँ, लातेहार में पता नहीं कौन सा गांव है, कौन सा क्या है, गांव में है कि कस्बे में है। जी जनाब। हाँ, मैं भी भाई साहब गाड़ी चलाता हूँ, मैं पानीपत में इस टाइम पे। अच्छा। ये कंटेनर में गाड़ी नहीं होती अपनी। हाँ। ये हरियाणा से चलाता हूँ, DICT सुना होगा तुमने, सोनीपत। जी। हाँ, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, चलिए तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ, जरा लाइन पर रहिए अगर टाइम हो थोड़ा सा। हाँ जी जनाब, क्या नाम था आपका? मेरा नाम फहीम रजा है। नहीं, वो सामने वालों को बोल रहा हूँ जो देवबंद की तरफ से है। अच्छा, मैं खामोश हूँ, चलो आप बोलिए। जी देवबंद वालों, हेलो। अरे ये देवबंद वाले तो चले गए। अच्छा। अगर मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा, मेरी ये आप उस पर मत डालना नेट पे। ये रिकॉर्ड हो रही है सब पहले से ही ना, क्योंकि उसके बाद एक बात मैंने इनको ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कट कर देता हूँ यहाँ। मैं कुछ खास बात है, मैं दोबारा फोन करूँगा फिर। हेलो। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? मैं निसार अहमद बोल रहा हूँ। निसार अहमद भाई, कहाँ से? नूर हसन बोल रहे क्या? मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
अच्छा अच्छा, आपका मसलक? हमारा मसलक देवबंद। अच्छा, तो अभी इस वक्त क्यों कॉल किया? साहब आपको फोन लगाया मैंने, हेलो, इसलिए लगाया हूँ कि आपने क्या उलमाए कराम से फोन पे डिबेट करते, नेता वाली सर की ये करते आप क्या? जैसे नेता लोग एक दूसरे से डिबेट पे लड़ते रहते, ये बोलता कुछ वो बोलता कुछ। साहब ये आप जो करते ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं, अच्छी बात नहीं। अपन कौन है? अपन कौन है? नहीं नहीं नहीं, मैं भी और तुम भी कौन है ये बता रहा हूँ मैं आपको। मोमिन है, गुलाम रसूल है। हाँ बात सही है। तुम भी और मैं भी मोमिन है, गुलाम रसूल है, बात सही है। रसूलुल्लाह के नौकर हैं और नौकर का काम होता है पहरा देना। तो पहरा दे रहा है साहब। आप नौकरी निभा रहे हैं। सुनिए ना, बात मेरी सुनिए आप पूरी। अपने अपने में ये ऐसा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं उसको बोल रहे हैं, इसको ये ऐसा वो वैसा, ये अच्छा नहीं है सर। अब ये हैदराबाद का सबक मुझे मत पढ़ाओ यार, मैं सियासत में नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई बात ही नहीं कर रहा मैं। मुझे कोई सियासत आप उलमाए कराम से बहस करते, आप उलमाए कराम से बहस करते। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सुनिए भाई, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। नहीं नहीं, अपना काम कैसा करेंगे आप? कैसा करेंगे? नहीं ये गलत है आपका। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये ध्यान रखना। हाँ हम ना, ये आपका गलत है साहब। कोई उलमाए कराम को गलत नहीं है, गलत है। कोई उलमाए कराम का परेशान बल्ले बल्ले परेशान कर दे फोन लगा। कहाँ मैंने किसको परेशान किया है? जिस तरह तुमने मुझे कॉल किया ऐसी और लोग भी कॉल करते हैं। अभी एक और देवबंदी आया था, वो भी मुझे कॉल कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कॉल कट कर दो, वो कह रहा है मैं तुमसे बात करूंगा। अरे साहब आपकी बात सही है, बिल्कुल। मैं तो खुद मना करता हूँ कि अपनी इज्जत को बचाओ, बात मत करो, मगर वो कहते नहीं नहीं हम बात करेंगे। तो मैंने कहा बात करोगे तो अपनी देवबंदियत को जलील और रुस्वा करोगे। नहीं नहीं, मैं तो समझाता हूँ मत करो बात, फिर भी पीछे लेके पड़ जाते हैं यार। आप ये मैं थोड़ी किसी को कॉल करने जाता हूँ। पूछते बगैर वजू की नमाज होती कि ये पूछते? हाँ तो देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा है। नहीं वो इजाजत दी है बगैर वजू की नमाज पढ़ने की। क्यों दी है भाई? क्या बगैर वजू की नमाज हो जाएगी? आपको वो एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो उसको। अरे तो जब बगैर वजू के नहीं होगी तो क्यों करो? क्यों एक्सेप्ट करो? एक्सेप्ट क्यों करो यार? जब बगैर वजू के होगी ही नहीं तो क्यों एक्सेप्ट करो? आपने कैसे कह दिया कि दिल चाहता तो एक्सेप्ट करो, नहीं चाहता तो मत करो? अरे यार मुसलमान हो कि कौन हो यार? नहीं तो उन्होंने उनके हिसाब से कुछ बताए होंगे ना सब। अरे यार जब आपको नॉलेज हो, भाईजान आपको नॉलेज हो तो आप बात कीजिए, वरना इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए। इन लोगों के साथ में आप भी जो है वो वही हिसाब होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। नहीं नहीं सर, ये जो आप जो डिबेट कर फोन के ऊपर ऐसा करते डिबेट करते, ये आपकी अच्छी बात नहीं साहब। अच्छी बात है ये। मैं अवाम अहले सुन्नत को, मैं मोमिनों को, मैं गुलामे रसूलों को, देवबंदियों का, वहाबियों का असली रूप, असली चेहरा, असली नक्शा दिखाना चाहता हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या करते सब? मैं क्या करता हूँ? जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ वही करता हूँ। आपको मैंने जिस तरह आपने कॉल, मैं नहीं देता हूँ जवाब। क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देता हूँ कि तुम देवबंदियों का पक्ष लेके आए हो। अरे मेरी बात सुनो, आपको सलाम करा मैंने, जवाब क्यों नहीं दिए? मैंने नहीं दिया, मैं पूछ के जवाब देता हूँ कि वफादार है कि गद्दार है, वफादारों में से है कि गद्दारों में से है। हम गद्दार है? मुझे क्या पता तुम कौन हो क्या नहीं हो? तुमने अपनी पहचान ही नहीं बताई, तुमने डायरेक्ट बात रखी। नहीं नहीं नहीं, आपको सलाम किया, आपका काम क्या था जवाब देने का? मैं नहीं देता हूँ। मैंने कहा ना मैं कोई नेता नहीं हूँ कि साहब किसी का दिल खुश करने के लिए जो है मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दूंगा। मुझे वोट नहीं चाहिए आपसे, मुझे गुलामाने रसूलों की दुआ चाहिए, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। तो आपको वोट दे रहा मैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई सियासत नहीं खेलता हूँ। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। जो मुसलमान है हकीकत में, कौन मुसलमान है? थानवी मुसलमान है? मुसलमान नहीं फिर कौन है? काफिर है। तुम कैसा काफिर बोलते थे? तुम्हारे नबी की शान में तौहीन की है, जिसको तुम अपना नबी मानते हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तौहीन करे वो मुसलमान हो सकता है क्या? हजरत थानवी ने तौहीन करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हाँ, आपको मालूम नहीं है ना कि आपके नबी की शान में तौहीन की है जनाब।
अरे आपको जितना मालूम है ना, आपको आपकी होशियारी खत्म हो रही है। पहले तहकीक कर लो, उसके बाद में बात करना भाईजान, ठीक है? आप नेता हो या कुछ भी हो, दुनिया का चाहे तुम सबसे बड़ा आदमी हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ओहदे वाले हो, ठीक है? वो आपका ओहदा आपके लिए है, ठीक है? मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ये आपको सलाम का जवाब क्यों नहीं दिए? मैंने नहीं दिया, बात खत्म हो गई। क्यों, आप मुसलमान नहीं है क्या? तुम दुश्मनाने रसूलों का पक्ष लेके आए हो और मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें दुआ दूं? नहीं, आप मुसलमान नहीं है क्या, ये बताओ मेरे को। मैं तो मोमिन हूँ, मैं इसलिए तो नहीं दिया मैंने सलाम का जवाब। मेरे आका ने फरमाया कि बद मजहब से मुलाकात हो तो जवाब मत दो। एक गैर मुस्लिम सलाम अगर सलाम करे तो जवाब मत दो, उसको सलाम मत करो। अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में मत जाओ, बीमार हो तो उसे देखने मत जाओ, उसके साथ खाना मत खाओ, पानी मत पियो, उसके साथ उठो मत, बैठो मत, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। अच्छा, हाँ, ये आपकी बात सही है। ये इस हदीस को गलत साबित कर दो, 1000 रुपए का इनाम नगद। नहीं, आपकी बात सही है, कोई बीमार उसको मिलने को मत जाओ। अरे ये आदत मत बद मजहबों के लिए कहा ना, मुर्तदों के लिए कहा ना, मुनाफिकीन के लिए कहा ना, मोमिनों के लिए थोड़ी मना किया। मोमिनों के तो मोमिन ज़ियारत करते हैं, और मोमिनों से तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज है मोमिनों से बात करने का। अरे मोमिन अगर कैसा भी है, चाहे उसकी हालत ये है कि वो रोज कमाता है, रोज खाता है, यानी रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, वो भी मेरे सर का ताज है। मोमिन मेरे सर का ताज है। और गद्दार रसूल चाहे दुनिया की बादशाहत करता हो, सारी दुनिया की बादशाहत उसके हाथ में हो, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता जूते की नोक पर है। नहीं, तो तुम्हारा ये सुन रहा मैं, देवबंदी जूतों की नोक पर, देवबंदी जूतों की, हाँ, हर गुस्ताखे रसूल जूते की नोक पर, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे शिया हो, कुछ भी हो, चाहे कादियानी हो, कोई भी हो, हर गुस्ताखे रसूल जूते की नोक पर। मैं किसी को इज्जत नहीं देता, मैं सिर्फ मोमिनों को, गुलामाने रसूलों को इज्जत देता हूँ। ये आपको जो जिससे बात करे आप सब गुस्ताखे रसूल ही ये सब ये। फिर वही बात, मैंने किसी का नाम लिया क्या? मैंने आपको कहा कि आप गुस्ताखे रसूल हो? नहीं, आपका जो चालो, तुम्हारे सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया, और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये ध्यान रखना। मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया कि तुम गुस्ताखाने रसूलों की जो है हिमायत में आए हो। नहीं, आप इससे पता चल गया आपको कि आप कौन है करके। चलिए, बहुत अच्छा हुआ आपको पता चल गया, तो पहले से नहीं जाने थे तो आज जान लिया। सलाम करा मैं नहीं देता। नहीं, आपको सलाम करा मैंने, आपने जवाब नहीं दिए। नहीं देता ना मैं जवाब। गैर मुस्लिम को भी सलाम करे वो भी जवाब देता। तो गैर मुस्लिम को आप सलाम करते हैं? गैर मुस्लिम को भी आप सलाम कुछ भी करे वो भी जवाब देता है। नहीं, गैर मुस्लिम को आप सलाम करते हैं? आप उससे भी गए गुजरे क्या? अच्छा, गैर मुस्लिम को आप सलाम करते हैं? उसको कुछ भी करते हैं, फिर वही बात, गैर मुस्लिम को वो भी जवाब देता है। अरे यार, गैर मुस्लिम को सलाम करते हैं आप उससे भी गए गुजरे हैं क्या आप? ऐसा है, तुमको तुम्हारे जमात की हकीकत नहीं मालूम है, ठीक है? बहस मत करो। हकीकत मेरे को पता चल गई साहब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पता चल गई ना आप? अच्छा हुआ आपको पता चल गई। पहले से आप अंधेरे में थे, अब उजाले में आ गए ना? पहले से आप अंधेरे में थे, अब उजाले में आ गए ना? हमारी हकीकत का पता चल गया ना आपको? ठीक है, अच्छी बात है। एक मैं हूँ जो तुम्हारे सलाम तक का जवाब नहीं दे रहा हूँ, और एक तुम हो जो मुझे ये जानकर भी कि ये देवबंदियों का रद्द करता है, खुल्लम खुल्ला ये देवबंद के 4 अकाबिर को काफिर कहता है, फिर भी तुम मुझे सलाम कर रहे हो। यार, क्या तुम्हारा ईमान है? क्या तुम्हारा धर्म है? तुम्हारा धर्म नहीं, चूचू का मुरब्बा है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कोई दीन धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई दीन इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं। मुझे ये जान रहे हो कि ये बंदा देवबंदियों से बात करके उनकी गुफ्तगू को यूट्यूब पे डालता है और देवबंद के 4 अकाबिर को काफिर कहता है, फिर भी तुम मुझे सलाम कर रहे हो। मुसलमान समझ के करे आपको ये मुसलमान, तो फिर मुझे समझाने क्यों आयो? जब मैं मुसलमान हूँ तो फिर तुम मुझे समझाने क्यों आयो? तो आप बाद में पता चल गया कि आप नहीं है। अरे यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने जवाब नहीं दिया तो पता चल गया उससे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर तुम ये नहीं जानते कि ये देवबंदियों का रद्द करता है तो तुम मुझे कॉल क्यों करते और इस अंदाज में क्यों बात करते कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये वैसा नहीं कर रहे हो, ये वैसा नहीं कर रहे हो? उलमाए किराम से बहस करना, तुम्हारी मैंने गुफ्तगू सुनी है तो ऐसा है वैसा है। अरे यार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही यार झूठ बोलते हुए? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करते।
آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی کیوں؟ کہ آپ کی جگہ پہ آپ کی کیا اہمیت ہوگی, کیا ویلو ہوگی آپ کی. ارے صاحب آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے نا. ہم جھوٹ بولتے ہی نہیں, ہم تو جو بھی ہے کلیئر بالکل صاف ستھرا. سوسو کرنے کی عادت نہیں, بالکل سیدھی ستھری. اچھا ہاں مائنڈیڈ آدمی بولو پھر تمہاری کیا نہیں. پھر وہی بات, اس میں مائنڈ کی کون سی بات ہے. ہاں مائنڈیڈ آدمی بولو پھر, تمہارے دماغ کے حساب سے میں یار دکھاوا نہیں کرتا ہوں, جو بھی ہے بالکل صاف صاف ہے, کلیئر ہے ایک دم آئینے کی طرح. ہاں دکھاوے والی اپنی عادت نہیں ہے کہ صاحب کسی کے سامنے چپلوسی کرو, دکھاوا کرو. اگر تھانوی کو کچھ بول رہے ہیں, اگر ہم نے کسی کی محنت مزدوری بھی کی, سنیے, اگر ہم نے کسی کی محنت مزدوری بھی کی تو جتنا کام کر رہے تھے اتنا ہی کیا. مالک کو دیکھ کے ہاتھ لپکایا نہیں. میں دیکھتا تھا کہ دوسرے لوگ مطلب آلسی بن کرتے تھے, آرام کرتے تھے, اور جب مالک آ گیا تو ہم سے زیادہ کام کرنے لگے. دکھایا کہ ہاں یار یہ لوگ بڑا محنت کرتے ہیں, اور ہمارے جیسے کو دیکھ کے مالک کہتا ہے ارے یار یہ کتنا جو ہے سستی پن ہے, یہ کام اچھا نہیں کرتا ہے. تو میرے اندر دکھاوا پن نہیں ہے. آپ کام کیا کرتے ہو یہ بتاؤ نا. ارے یار میں کچھ نہیں کرتا ہوں, اب میں خالی رہتا ہوں, بس دیوبندیوں کی اسی طرح واٹ لگاتا ہوں. دیوبندیوں کا اصلی چہرہ عوام اہل سنت کے سامنے لاتا ہوں, بس یہی کام ہے میرا اوریجنل. کام بھی اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پیشے سے ڈرائیور بھی ہوں, اور ڈرائیونگ کا کام تو اب ہے نہیں, کم ہے. لاک ڈاؤن نے سب کا جو ہے خاتمہ کر دیا, کوئی کام والا صحیح سود پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کون سی ابھی کوئی کام درست پہ جیسے کہ پہلے حالت تھی کہ کام لگاتار چلتے تھے, وہ چیز نہیں ہے. تو جن کی میں گاڑی چلاتا تھا تو لگاتار نہیں چلتی. ٹھیک ہے, اب سید آل رسول نے مجھے ایک چھوٹا سا روزگار دیا ہے, میں اسی کو کر رہا ہوں. نہیں آپ ڈرائیور ہوتے علماء کرام سے بحث کرتے آپ؟ ارے دنیا میں کوئی دیوبندی علماء ہوتے ہی نہیں یار, جاہل ہوتے ہیں ایک نمبر کے جاہل ہوتے, اور تم علماء سے بھی آگے چلے. اگر تمہارے اندر سچائی ہے تو ابھی لے کے آؤ کسی دیوبندی عالم کو, پھر میں دکھاتا ہوں کتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں. لاؤ ابھی لائن پہ. آپ دیکھا, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا آپ کیس کو, آپ فون کٹ کر دیتے نا, کوئی اچھا عالم مل گیا آپ کو. تو میں نے کبھی کسی عالم کے سامنے کال ہی نہیں کٹ کیا. ہاں جاہلوں سے کال کٹ کر دیتا ہوں جو بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. آج تک میرے کون سی وہ آڈیو ہے جو میں نے کسی دیوبندی عالم کے سامنے کال کٹ کیا ہو؟ ایک دکھاؤ. ارے دیوبندی عالم میرے سامنے سے بھاگتے ہیں. ہاں بھاگتے آپ, یہ بھاؤ مت کرو. ٹھیک ہے, اگر تم سچے ہو تو لاؤ کسی اپنے دیوبندی عالم کو پکڑ کے, پھر دکھاتا ہوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے. آپ ڈرائیور ہے, ڈرائیور ہی کرو صاحب. تم کرو ڈرائیونگ, ٹھیک ہے, جو چیز آپ کو آتی وہی کرو, جو نہیں آتی اس کے بدلے اس کے پیچھے کائے کو پڑے صاحب آپ. ایسا ہے, زیادہ ٹینشن مت لو ورنہ سر پہ سے جو ہے بال گنجے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر تیل بھی مجھے ہی بھجوانا پڑے گا گنجے والوں کا. آپ جو کام کرتے صاحب وہی کام آپ کے لیے ٹھیک ہے. بالوں کے لیے جو ہے تیل بھی پھر مجھے ہی بھجوانا پڑے گا. زیادہ ٹینشن مت لیجیے ورنہ بال جھڑ جائیں گے. دوسرے کی فکر میں بال جو ہے سفید مت کیجیے. ارے سفید کرنے کی غرض نہیں ہے صاحب, آپ کو جو کام ہے وہ کام کیجیے. ارے صاحب جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجیے, آپ جائیے اپنا کام کیجیے. ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہیں ویسے؟ کون آپ؟ میرا مت پوچھو. نیتا ہیں؟ نہ میں نیتا بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, کوئی جیسے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ ہیں ڈیلر وغیرہ؟ ڈیلر بھی نہیں ہے میں. پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو کرتے ہوں گے. ڈاکٹر ہیں؟ ایک جگہ امامت کرتا ہوں, اس میں امامت کرتے ہیں. ہاں. اچھا, کہاں؟ یہ اورنگ آباد میں. اچھا, اورنگ آباد میں. تو مولوی صاحب ہیں کہ مفتی صاحب ہیں؟ حافظ صاحب ہے. حافظ صاحب ہیں. تھانوی کی حفظ الایمان کتاب پڑھی آپ نے؟ ارے صاحب وہ کتاب کے بارے میں مت بولو, میں اتنا ہی بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا جو کام ہے نا اتنا ہی کیجیے آپ. الحمدللہ جو میرا کام ہے میں اسی کو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے صاحب علماء کرام سے. ارے یار میرا ہی کام ہے, میرا بھی کام ہے کیونکہ میں مومن ہوں. میں مومن ہوں, اور مومنوں کو ان منافقین سے بچانا الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. آپ جو کام کر رہے صاحب اتنا ہی کیجیے بس, مہربانی. میں گستاخ رسولوں سے مسلمانوں کو بچانے کی ایک فکر رکھتا ہوں. کیوں, تم کو درد ہو رہا ہے, تم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو ہوگی نا صاحب, ہمارے علماء. تم جماعت لے کے کیوں جاتے ہو بار بار؟ تم جماعت لے کے کیوں جاتے ہو حافظ جی؟ تم جماعتیں کیوں منگاتے ہو, جماعتیں کیوں بھیجتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو پکڑ کے
किराए पे खरीद के उनको, किसी को साल भर के लिए खरीदा, किसी को 6 महीने के लिए खरीदा, किसी को 3 दिन के लिए खरीदा, किसी को कितने दिनों के लिए खरीदा, फिर क्यों बुलाते हो? जमात को क्या? हाँ वो खरीदे हुए, हाँ और क्या, वो खरीदे हुए। हाँ बिल्कुल, पैसे जाते हैं उनको, जो ठेकेदार होते हैं जो जमात को इकट्ठा करते हैं। नहीं जाते हैं क्या? तुम चलिए मेरे साथ। मैं 15 साल से जाता रहा हूँ, मैं पूरी हकीकत को जानता हूँ इनकी। जरा मरकज में जाके देखो, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास जो मरकज है, हाँ वहाँ पैसे दिए जाता है सबको उनको। आप मेरे और बाहर से जो पैसा आता है ये किस काम में आता है? यही बदअकीदगी फैलाने के लिए तो काम में आता है। और तुम्हारे लोगों की नमाज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्गों ने रसूल पाक के ख्याल को नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर बताया है, इसलिए तुम्हारी नमाज नहीं है। इस जमात के लोगों को तुम खरीदे हुए टट्टू बोल रहे ना? अरे बिल्कुल बोल रहे ना। आप मेरे साथ भी 10 दिन चलिए, आपको। अरे यार थू मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं जब तुम्हारी नमाज ही नहीं होती? अच्छा, तुम्हारी नमाज होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मोमिन हैं और नमाज मोमिनों के लिए है। तुम्हारे ऊपर तौबा फर्ज है, तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, तौबा फर्ज है। तुम्हारे पीछे कोई सुन्नी मुसलमान अगर नमाज पढ़ेगा तुम्हारे पीछे तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी खुद नहीं होती। चलो, तुम इमाम हो ना? मैं अभी के अभी साबित कर दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी अभी करके दूंगा। बोलिए ना। बोलूं? बताइए, थानवी का ख्याल नमाज में आ जाए तो गधे के बैल के ख्याल से बदतर होगा? क्या बोला? हजरत थानवी का ख्याल नमाज में आ जाए तो? हाँ, तो उनका ख्याल काय को करेंगे नमाज में? अच्छा, रशीद अहमद गंगोही का आ जाए? अरे उनका क्यों ख्याल करेंगे नमाज में? अल्लाह के सामने आ ही जाता है कि यार उस्ताद ने मुझे ये सबक बताया, यार उस्ताद ने यहाँ पे डंडा मारा, यार उस्ताद ने यहाँ का काम है ख्याल लाना है। आप जैसे लोगों का जो काम है ना वो लाना है ख्याल में। हमारे ख्याल में काय को आएंगे वो? अच्छा, मगर थानवी का एक मुरीद है जो कहता है कि हजरत नमाज में जी नहीं लगता, मगर जितनी देर में आपको तसव्वुर कर लेता हूँ उतनी देर जी लग जाता है, मगर ये हालत भी मतलब बराबर नहीं रहती। ये ख्याल लाना कैसा है? वो कहता है ये ऐसा होना कैसा है? कहता है थानवी अच्छा है। उससे पूछिए ना आप, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अरे यार, तुम कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे को आएगा, मैं तुम्हारे घर का हवाला दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हो उससे पूछो। और उनसे पूछो ना, क्यों हमारी बात करो ना। अरे तुम थानवी के हो कि नहीं हो ये बताओ? तुम देवबंदी हो कि नहीं हो? देवबंदी है ना। तो पूरी देवबंदी तो थानवी के नाम से पहचानी जाती है, पूरी देवबंदी तो थानवी के नाम से पहचानी जाती है। तुम थानवी के ही पिछवाड़े पे लात मार रहे हो। नहीं, पिछवाड़े पे लात नहीं मार रहे। ऐसा है, अभी ये शुरुआत है, तुम यहीं से बात बंद कर दो, वरना अपनी देवबंदियत को जलील और रुसवा करा के जाओगे। मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, मैं सलाह दे रहा हूँ कि अपने गुस्से को थूक दो और मुझसे बात करना बंद कर दो, वरना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे देवबंदियत को। अच्छा जी, हाँ, तो आप फ्री में सलाह दे रहा हूँ आपको। आप गाड़ी चलाइए साहब, उलमा इकराम से उलझे नहीं, बस इतनी बात कर रहा हूँ। अरे तुम उलमा नहीं हो जनाब, तुम उलमा नहीं हो, समझे? तुम्हारे जैसे कितने आते हैं, कितने जाते हैं। अरे हजरत ये भी भागा, हाँ ये भी भागा, वो भी भागा, ये भी भागा, दोनों आप ही के सामने भागे हैं। जो आपने कॉल किया था उस वक्त। अच्छा, वो भी भाग गया, ये भी भाग गया। ये भी भाग गया। तो जब गाड़ी क्या हुआ, गाड़ी में चला रहे हो, क्या बात है? काम ही नहीं है, और सैयद आले रसूल ने एक रोजगार दिया है छोटा सा। कहाँ वालों ने? मालेगांव महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, हाँ, तो बस उसी को कर रहा हूँ। अल्लाह ताला दाल रोटी उसी में जो है देता है, और अपना ये काम जो है मतलब चलता रहता है। जो देवबंदियों की ऑडियो क्लिप मतलब जिनके फोन आते रहते हैं ना, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं किसी का काम भी करूंगा, गाड़ी चलाऊंगा, किसी की नौकरी करूंगा, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब दिल भर के इनके सर्विस करने का मौका मिलता है, समझे हजरत? मैंने वो ये जो आए बाएं शाएं करते हैं ना, ये जो आए बाएं शाएं करते हैं, ये अपना
मैंने एक और भी सुनी थी, वो बरेली के क्या नाम है, कौन रजा से बात हो रही, वो भी बहुत अच्छा बता रही थी, ऐसी कुछ नाम है उनका। हुजूर तस्लीम मियां। हाँ, वो भी आपको दुआएं दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम बता रहे हैं हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात के बहुत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते हैं और मेरी इस्लाह भी फरमाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा दिल बहुत खुश है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह हजरत। हाँ, बहुत दिल। कभी कोई चांस पर ये लोग चाहते हैं, ये इन लोगों की मतें कट गई हैं हजरत। ये चाहते हैं ये किसी तरह से रुक जाए, कुछ नहीं आपको, और जब तक मैं इनको नंगा ना कर दूं मैं रुकने वाला थोड़ी हूँ। आपको कोई डर की दहशत की कोई बात ही नहीं है। खालिद बिन वलीद कितने मजमे में अकेले खड़े हो गए, लाखों के मजमे में अकेले खड़े हो गए थे, कोई और उनसे पूछा कि तुम मुसलमान हो, उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत होते हैं, मैं मोमिन हूँ, मोमिन ईमान वाला रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हमारा एक ही नुक्ता ईमान के लिए बहुत है। आप कोई भी टेंशन करने की बात ही नहीं है। आपको कैसी भी कोई धमकी किसी तरीके में सुनता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुसलमानों की मेरे मतलब दुआएं हैं, और जितने हम जो कई सारे भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में है, इस लाइन में है। उलमा की बात छोड़ो, मैं आम आदमियों की बात बता रहा हूँ ना। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा, उलमा तो हमारे काम कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उलमा की ज्योतियों की जो धूल है उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी बहुत कुछ मतलब हासिल हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, और उसी को लेकर हम भी जो है ये काम कर रहे हैं। मैं खुद इन लोगों में से निकला हूँ। जब मैं इनकी हकीकत को जान गया तो मैं भी चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई जो हैं वो अनजाने में हैं, धोखे में इन लोगों के साथ, तो उनको बताया जाए, समझाया जाए, उनको भी निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात तो है नूर भाई, ये एक नंबर है तो झूठे होते हैं। जी जी जी, महा झूठे होते हैं। असल सबसे बड़ी बात इनके अंदर यही है जी, झूठ तो उनका ऐसे मानो कि इनकी नस नस में रोंगटे में है अंदर। जी, ये झूठ नहीं बोलेंगे तो धर्म नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं करेंगे जब तक ये झूठ नहीं बोलेंगे। जी 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 हजरत, क्योंकि मेरा वास्ता बहुत पड़ता रहता है जी, और मैंने जब से जवाब नहीं दिए, मैंने खुदा की कसम मैंने ऐसे ऐसे जवाब दिए। खैर मुझे इतनी बुते है नहीं, मुंह सालों का फेर दिया है मैंने। हाँ, जो ईमान वाले होते हैं वो ऐसे ही इनका मुंह बंद कर देते हैं हजरत। मैंने मुंह फेर दिया सालों का, ऐसे कर जवाब दिए एक बार का। चलो मैं फिर, आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। चलो चलो ठीक है हजरत, ठीक है, फिर करता हूँ बाद में बात है। हाँ कभी कोई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हजरत। मेरे लाख कोई काम हो गाड़ी का तो आप बताना, गाड़ी में आपको दिला दूंगा। नहीं हजरत, अपने का तो हिसाब किताब नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि 25-30 हजार रुपये कम से रहते हैं। माशाअल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह ताला आपकी कमाई में खैर व बरकत अता फरमाए। अपने शमसुद्दीन का मजार है यहाँ पे दरगाह शरीफ। हाँ हाँ हाँ, अबू अली का कलंदर का मजार है यहाँ पे। मैं जब मैं हफ्ते में 15 दिन में तीसरे चौथे दिन में जाते ही रहता हूँ। माशाअल्लाह, चलिए अच्छी बात है। बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने से भी सुकून हासिल होता है। बहुत जाता हूँ मैं। ठीक है फिर हजरत, ठीक है हजरत, ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा फोन उठा लेना आप। हाँ ठीक है हजरत, ये व्हाट्सएप कर देना मुझे अपना नाम, तो सेव कर लूंगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्यारे नूर हसन भाई, मैं सैयद शब्बीर रज़वी, कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चितापुर तालुका से मैं आपको अपनी वॉइस से ज़रिए से आपको भेज रहा हूँ। आपसे जो मैंने तेल लिया था माशाल्लाह, वो तेल के ज़रिए से बालों पे लगाने का तेल था। वो तेल बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह मैंने अपने घर वालों के लिए मंगाया था वो, तो वो तेल से कुछ इजाफा मिला है। 1-2 या 3 इंच बाल उसके अंदर इंशाल्लाह बड़े हैं, तो और तेल मंगाना भी है। और मैंने दिगर हमारे जो इस्लामी भाई थे यहाँ पर, दोस्त रिश्तेदार थे, तो उनको भी दिया, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि और मंगाए। और माशाल्लाह मैं तो डर के लिया था, मगर फिर भी बहुत अच्छा तेल है।
اور وہ اس لیے تعریف کر رہا ہوں تیل کی کہ وہ تعریف کے قابل تیل ہے. آپ نے جس طریقے سے بتایا تھا کہ بھائی کسی بزرگ کی دعا ہے اس کے اندر، تو بے شک اللہ والے کی دعا رہتی ہے، اور اللہ والوں کی دعا ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی کام آتی ہے اور باحق وہ قبول بھی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ضرور وہ تیل اور ایک بار مرتبہ مجھے منگانا ہے آپ سے. اور تمامی اگر یہ آپ میری آڈیو اگر یوٹیوب پہ ڈالیں گے انشاءاللہ، تو تمامی حضرات سے گزارش ہے میری کہ اگر یہ جو بھی تیل لیں گے انشاءاللہ یہ تیل اچھا ہے، کیونکہ یہ تیل لینے سے ہمارے پیارے نور حسن بھائی کی اس میں ان کو بھی روزی روٹی کا سلسلہ چلے گا، کہ وہ بھی کیا ہے کچھ کاروبار کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں. میرے کو کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی ان کی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے، میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ایک پریشان حال ہے. ہم لوگ یہ تیل اگر یہ تیل اچھا چیز ہے آپ لیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ان کا گزارا چلے گا، ان کے بھی بچے ہے، بیوی ہے، ان کا پریوار ہے. اب میں زیادہ تو نہیں بول سکتا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے اتنا بتا دیا میرے مرضی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی حضرت بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں نے آپ کی آڈیو سنی اور سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جو آئل منگایا تھا اس سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور جن کو بھی آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ فیض ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں سید آل رسول اولاد رسول کی دعا شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اس آئل کے ذریعے سے دوسرے بھائیوں کو فائدہ ہو. جن بھائیوں کو بالوں کی پرابلم ہے، بالوں کے جھڑنے کی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے اور بال جھڑنے سے رکیں. اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں. تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر. جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا. بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں.